अदानी ग्रुप के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोग कितने दिन और एजेंडा चलाएंगे? जितनी बार चलाएंगे उतनी बार ऐसे ही अपने मुंह की खाएंगे। बस करिए, अब बस करिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अलेजेड चार्जेस में अदानी ग्रुप के डायरेक्टर्स गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन के खिलाफ एफसीपीए यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत कोई मामला ही नहीं है। तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों? बिना बात फिर से ढिंढोरा किस बात का पीटा जा रहा है? देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदानी ग्रुप पर लगे आरोपों को विस्तार से पढ़कर पूरी तस्वीर साफ की है। पहला चार्ज है कि अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। दुनिया भर में कॉकटेल ऑफ कॉन्स्पिरेसीज के तहत फेक एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ देश के इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स और बड़े एक्सपर्ट्स ने अदानी ग्रुप पर अपना वर्डिक्ट दे दिया है और देश के जाने माने लॉयर्स अब अदानी ग्रुप और भारत की साख को सुनियोजित तरीके से बार बार खराब करने के लिए कड़े कानूनी कदम उठाने की भी बात कर रहे हैं। India is becoming the very fast growing economy of the country. So of course, those who does not want to see the India in the race, they will target from one to the other. In past also we have seen. Now those people who are targeting it, they must see that there is no allegation qua the bribery charges, the allegations does not substantiated by any evidence. So it's afterthought, and let's reply also has to be seen. Reply has clearly come, and no law is the judgment is passed only on the basis of the allegations, and these are allegations only as of now. Nothing has come forward, so it is to be replied in legally, and I think those Indian houses or the agenda driven people who are exercising it for their benefits, so at the behest of some foreign companies, they should also be taken to the task. Legal action should also be taken against them. मंगलवार की सुबह अदानी ग्रीन ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया और ग्रुप के खिलाफ चल रहे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ग्रुप के सारे शेयरों ने रोरिंग कमबैक किया। मार्केट कैप 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गया। अदानी ग्रीन जैसे कई शेयरों में अपर सर्किट लगा। करीब 18 से 19% तक की तेजी बाकी सभी शेयरों में भी आई। जिन शेयरों में गिरावट आई थी वो आज काफी रिकवर कर गए। बची कुची रिकवरी भी आ ही जाएगी, ये भरोसा शेयर बाजार से जुड़े तमाम मार्केट एक्सपर्ट्स को है। आप खुद ही सुन लीजिए। Fundamentals remain as convincing as they were before, even today's situation. On the EBITDA base of 85,000 crore for the next financial year, they would probably be growing at the rate of 20% as a group over next 2 to 3 years on a CAGR basis. So certainly, I think if 20% CAGR on 85,000 crore base of EBITDA and a couple of companies coming up into the listing space from Adani Enterprise, all in all sounds, I think, absolutely very convincing story from the fundamental point of view. And since this particular confusion or clarification, whatever you want to name it as, is now available, I would think that the concerns are gradually receding away and the stocks are becoming relatively more attractive than they were before. In fact, the downside is now protected to a greater extent and the valuations have come within the reach of buying. So I would remain positive, as said before as well. The companies look fundamentally very strong and convincing to me at this point of time. If you were to look at the fundamentals, most of these stocks are trading at 50% of their intrinsic value for the next 1.5 years, FY27. Now, given this kind of a value gap, especially in large cap stocks, Nifty 50, Nifty 200, you'll not get such opportunities, elsewhere.
So given these facts, I think that investments made in these stocks at current levels will probably or hopefully mean that investors will be very well rewarded in the short to medium term. A number of companies, Moody's rating agencies have evaluated the company. IDC has, did due diligence for funding the Adani ports. So all these companies must have done their due diligence, and none of these allegations came forth at that point in time. So at this point, I think these we're making too much out of nothing at the current point in time. इस पूरे घटनाक्रम से दो बड़े जरूरी सवाल उठते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि किसी कारोबारी को क्या करना चाहिए, किस चीज पर फोकस करना चाहिए। जवाब यही है ना कि अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। अब अदानी ग्रुप के बारे में सोचिए। ये एक ऐसा कारोबारी ग्रुप है जो देश के लिए क्रिटिकल इंफ्रा बिजनेस में काम कर रहा है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस, इंफ्रा, पावर, रिन्यूएबल जैसे तमाम अहम सेक्टर्स में काम जोरों पर है। क्या अदानी ग्रुप को अपनी सारी एनर्जी इन क्रिटिकल इंफ्रा बिजनेस को बनाने और बढ़ाने पर लगानी चाहिए, या अपने खिलाफ लगातार चल रहे एजेंडे पर सफाई देने में? पिछले 1.5 साल में अदानी ग्रुप ने इन बिजनेसेस को न सिर्फ बढ़ाने पर काम किया है, बल्कि देश और विदेश से होने वाले चौतरफा अटैक्स का भी डटकर सामना किया है। चाहे शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या हाल ही में अमेरिका से आई एक झूठी खबर और उसके साथ देश में चला जॉर्ज सोरोस गैंग का एजेंडा हो, हर बार अदानी ग्रुप अपने फैक्ट्स लेकर आता है और झूठ का पर्दाफाश करता है। लेकिन आखिर कब तक? आखिर में इन आरोपों का सबसे बड़ा नुकसान देश के निवेशकों का होता है। क्या देश के रेगुलेटर्स और अथॉरिटीज को इस तरह का भ्रम फैलाने वालों पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में राहुल गांधी और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने यह सवाल उठाया है। The Congress party is blindly relying on a indictment against an Indian conglomerate which has done extremely useful business undertaking, useful businesses for India abroad, and it is trying to undermine them. अदानी ग्रुप के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन एजेंडा ड्रिवन झूठे आरोपों के साथ। इन सब के बीच एक सबक रिटेल निवेशकों के लिए भी है कि किसी भी इस तरह की एजेंडा वाली खबर को देखकर ना घबराना चाहिए और ना ही इसे देखकर अपने ट्रेड के फैसले लेने चाहिए। आपकी इस पूरे मामले पे क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।